अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 253 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 11.5 रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। बेटे अल्केन्स हमने पढ़े। अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आपको अच्छी तरह से मैंने डिटेल से बताया। देन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और आज हम पढ़ेंगे कि अल्केन जो हैं वो किस तरह के रिएक्शन जो हैं वो करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ ये सारा एक्सप्लेन करूंगी। Under high temperature or suitable conditions, alkane undergo two types of reactions. Number one, thermal and catalytic reactions, that is combustion and cracking. Number two, free radical substitution reaction are the reaction that involve replacement of one atom or group of atom by another through the free radical mechanism. Free radical substitution reaction. Substitution reaction of alkane take place in the presence of light energy through the formation of slightly reactive free radical. An example is the substitution of halogen atom with a hydrogen of an alkane, called halogenation. Alkanes react with chlorine and bromine in the presence of sunlight or UV light, resulting in successive replacement of hydrogen atom with halogens. The extent of halogenation depends upon the amount of halogen used. Reaction of alkane with fluorine is highly violent and result in mixture of carbon, fluorinated alkanes and hydrofluoric acid. Iodine does not substitute directly because the reaction is too slow and reversible. The order of reactivity of halogen is F2 greater than Cl2 greater than Br2 and then iodine. हेलोजिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप। यहाँ पे बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा हुआ है F2 Cl2 Br2 देन आपके पास I2 आता है। हेलोजिनेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। नंबर वन, initiation step is the first step in the mechanism of free radical substitution of alkanes by halogens. It involves the breaking of the halogen bond using energy from the UV light. Number two, propagation step is the second step in the free radical substitution in which initially formed radicals attack the alkane molecule, generating more free radical. Number three step, termination step. Number three is termination step. Termination step is the final step in a free radical substitution in which two free radicals react together to form a product. The termination may take place in different ways. The chloride and alkyl radical may combine to form chloroalkanes, or two chloride radicals may also react to make the chlorine molecule. Another termination mode is the formation of alkane with double number of carbon atom, which take place when two alkyl radicals merge together. This type of termination is rare and the alkanes with double carbon atom are formed in traces. However, its presence is evident of free radical substitution mechanism. By repetition of step 2, propagation step, a mixture of halogen substituted product chloroalkane is obtained. The more the chlorine gas in the reaction mixture to start with, the greater the proportions of chlorine atom in the chloroalkane molecules formed. Trichloromethane is also known as chloroform and tetrachloromethane is also known as carbon tetrachloride. इस लाइन को अंडरलाइन करें आप। ये जो लिखी हुई है ना ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको बेटे अंडरलाइन करो। मैं इसको और इलाज कर देती हूँ। ट्राइक्लोरोमीथेन को अंडरलाइन करें। ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज टेट्राक्लोराइड। इसको भी अंडरलाइन करो। क्लोरोफॉर्म को अंडरलाइन करो, टेट्राक्लोरोमीथेन को अंडरलाइन करो, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी आप अंडरलाइन कर लें। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे, वो रीड आउट किया रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के। अल्केन्स किस तरह के रिएक्शन देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो वो अब हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि अंडर हाई टेम्परेचर, जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कंडीशन सूटेबल होंगी, तो अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं हमें। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है अल्केन्स शो करेंगे। कब शो करेंगे बेटे, दो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं। जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा या जब कंडीशन सूटेबल होंगी। दो तरह के रिएक्शंस कौन कौन से हैं। पहला रिएक्शन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं।
और उन रिएक्शंस की कॉमन एग्जांपल कौन सी है, कंबशन और क्रैकिंग, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो है दैट आर नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये इनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं बेटे जिनमें रिप्लेसमेंट एक एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की रिप्लेसमेंट होती है बाय अदर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अल्कीन जो हैं वो दो तरह के रिएक्शन शो करेंगे, एक कौन से करेंगे, थर्मल रिएक्शन, और एक हमारे पास कौन से आ जाएंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन बाय वन इनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में यहाँ पे जो रिएक्शन दिए हुए हैं बेटे वो कौन से दिए हुए हैं, फ्री रेडिकल दिए हैं। देन हमारे पास क्या आएगा, हेलोजिनेशन आएगा। पहले हम बात करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन की। फ्री रेडिकल रिएक्शंस बेटे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब भी आपका रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो जो हैं जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुए थे पहले वही जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे। ये एक मेन और एक डिफरेंट फिनोमेना है जो यहाँ पे आप लोग देखोगे। अभी हम रिएक्शन करते हैं, मैं आपको सारे रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, आप सिंपली डिफाइन करेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन where the free radicals is produced during the reaction and consumed at the end of the reaction। बहुत आसान डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लो इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में। दोबारा बता देती हूँ, फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दे आर, आप सिंपल लिखो, चलो लिखो मेरे, मैं आपको बता रही हूँ। द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन वेयर द फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कंज्यूम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये वो रिएक्शंस हैं बेटे जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल बनेंगे और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वही फ्री रेडिकल जो हैं जो पहले प्रोड्यूस हुए थे अब वो क्या हो जाएंगे बेटे, कंज्यूम हो जाएंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटे हम लेंगे वो लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। मैं आपको पूरा हेलोजिनेशन के प्रोसेस जो है वन बाय वन बेटे करवाऊंगी, लिखवाऊंगी एंड आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी। आपकी बुक में ये हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि हेडिंग देके यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेलोजिनेशन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ लिया, हम पढ़े हैं यहाँ पे, मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि व्हाट आर हेलोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। हम यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शंस को बेटे पढ़ेंगे। कोशिश करती हूँ कि पॉइंट वाइज हेडिंग देके आपको लिखूँ कि अगर आपके पेपर में ये नोट आता है तो बेटे वहाँ पे भी आप इसको अच्छी तरह से जो है वो सॉल्व कर सको। हेडिंग देते हैं हम लोग यहाँ पे हेलोजिनेशन की, देन इसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। हेलोजिनेशन, व्हाट इज हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हैलोजेंस। अल्केन्स जब बेटे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर देती हूँ। द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस में आपके पास क्या आ सकते हैं, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो जब अल्केन्स रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस के साथ तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज हैलोजिनेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हैलोजिनेशन का प्रोसेस होता है तो बेटे इसकी वजह से सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की विद हाइड्रोजन एटम, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन कहेंगे। मैंने क्या बताया, हेलोजिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, हेलोजिनेशन के प्रोसेस में सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती रहेगी, ठीक है।
अब आपकी बुक में यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, के हैलोजन्स का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आता है F2, फिर ये इस ग्रेटर है किससे बेटे, Cl2 से, Cl2 किससे ग्रेटर है, Br2 से, एंड देन इन द एंड हमारे पास क्या आएगा, आयोडीन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन बाय वन, सबका मैं आपको बताऊंगी। आपकी बुक में इस तरह से नहीं दिया गया, इसकी आप भी हेडिंग दे सकते हैं। पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन को, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन बेटे सारी जो हैं ये बताती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाओ। नंबर 1 हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऊपर मैंने फ्लोरीन मेंशन किया। तो जो अल्केन्स हैं जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाईली वायलेंट होते हैं। क्या होते हैं, दे आर हाईली वायलेंट एंड रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ, यानी कि आप सिंपल अगर इसको लिखना ऐसे हम लिखें, नंबर 1 कह लेते हैं, चलो सपोज है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे कि द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज हाईली वायलेंट। यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन आएंगे वो क्या होंगे, दे आर हाईली वायलेंट बेटे, हाईली वायलेंट होंगे। और क्या होंगे, इनके रिजल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स बनेंगे और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, मैं सिर्फ पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख देती हूँ, की वर्ड्स लिख देती हूँ, आप इसको खुद जो है अपनी वर्डिंग्स में बेटे लिख सकते हो, ठीक है। नेटेड एंड अल्केन्स एंड आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लियर। नंबर टू आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। हम देखते हैं अब, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन को बताएं तो रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आप यहाँ पे कैसे मेंशन करोगे कि क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर, देखो अब आपको समझ आ रही है ना। पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पूरा इनका ऑर्डर लिख दिया। किसका ऑर्डर बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ये हैलोजेंस है। अब वन बाय वन बेटे सबकी रिएक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमने किसकी लिखी, फ्लोरीन की लिखी। फ्लोरीन में मैंने आपको क्या बताया कि हाईली वायलेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स बनेंगे आपके पास और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या देख ली, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है बेटे वो रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर चलते हैं हम नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 हमारे पास क्या था, ब्रोमीन। हम यानी कि देखेंगे आपके ब्रोमीन की रिएक्टिविटी किस तरह की होती है, ठीक है। हेडिंग दे लो यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको साथ साथ राइट कर लें अपनी बुक में। रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन की जब हम बात करेंगे तो ब्रोमीन नीड्स ओनली हीटिंग। ब्रोमीन को रिएक्ट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ब्रोमीन रिक्वायर्ड, आप क्या मैंने बताया, इट नीड्स ओनली हीटिंग, ठीक है, ओनली हीटिंग, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरह के इनके रिएक्शंस होते हैं और इनको अपना रिएक्शन शो करने के लिए कैटालिटिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वही थर्मल वाली हम बात करेंगे कि ब्रोमीन को अल्केन के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, दे ओनली नीड हीटिंग। नंबर 4 पे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन के बाद हमारे पास क्या था, आयोडीन। तो हम बात करेंगे आयोडीन की, रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन। आयोडीन के केस में बेटे आयोडीन डज नॉट सब्सिट्यूट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ये सब्सिट्यूट नहीं होगा बिकॉज द रिएक्शन इज टू स्लो एंड रिवर्सेबल, ठीक है। इसमें आप अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि जो आयोडीन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आयोडीन डज नॉट सब्सिट्यूट डायरेक्टली, ठीक है,
directly because the reaction is too slow and reversible. क्लियर हो गया? समझ आ गई? इधर से देख के लिख लो। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया व्हाट आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया व्हाट आर हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशंस की डेफिनेशन भी बेटे मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाई, अगर आप यहाँ पे नोट करो, हमने यहाँ पे राइट की है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखी है? द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हैलोजन्स। हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं अल्केन्स तो हम उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हैलोजिनेशंस जब हम प्रोसेस पढ़े थे तो हमने हैलोजन्स का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था बेटे वो मैंने यहाँ पे राइट किया कि हैलोजन्स का जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो कैसा है। वन बाय वन मैंने यहाँ पे सारे प्लेस किए, उनका ऑर्डर यहाँ पे मैंने राइट किया और फिर इन सब हैलोजन्स का जो रिएक्टिविटी है वो मैंने आपको बता दी। पहले यहाँ पे मैंने फ्लोरीन की लिखी कि फ्लोरीन जो है बेटे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन जो हैं दे आर हाईली वायलेंट और रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लोरीन की बात हमने की, हमने बताया कि क्लोरीन जो है इट कैन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमीन में मैंने क्या कहा कि इट ओनली नीड्स हीटिंग, और इन द एंड हमने क्या देखा? रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन देखी। मैंने आपको बताया कि आयोडीन डज नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज द रिएक्शन इज टू स्लो एंड रिवर्सेबल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बेटे अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग दे के आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया, रिटन फॉर्म में दिया। इस रिटन फॉर्म में देने का मकसद क्या है? ऐसे तो नहीं, शौकिया तो नहीं मैं आपको लिखवा रही, इसका कोई ना कोई रीज़न है। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है उसको आप डिस्क्राइब करें या आप उसको एक्सप्लेन करें। तो आपकी बुक में तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आप सिर्फ ये ऑर्डर लिखे आओगे और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लगता है कि आपको 2 नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपने बेटे ये सारा लिखना है, एक एक ऑर्डर लिखोगे, उसकी रिएक्टिविटी आप एक्सप्लेन करोगे, देन आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और तब ही आपको नंबर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने आपको ये लिख के दिखाया और आपको सारा समझाया। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं इन रिएक्शंस की? जो हम हैलोजिनेशन पढ़े हैं इनकी कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस की बात करते हैं कि डिफ्यूज सनलाइट या यूवी लाइट हो या आपके पास हाई टेम्परेचर हो तो ही आपके हैलोजिनेशन के जो रिएक्शन हैं वो होंगे। क्या मैंने कहा? हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस बेसिकली यहाँ पे आएंगी। आप हेडिंग दे लेना अगर आपका नोट आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस। हमारे पास कंडीशंस में क्या चीज़ आएगी? 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए। डिफ्यूज सनलाइट। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए? यूवी लाइट। या थर्ड कंडीशन क्या है बेटे? हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर की रेंज क्या है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने याद रखना है कि ये कंडीशंस हैं फॉर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशंस के लिए ये हमारे पास कंडीशंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्शन की कि जो हैलोजिनेशन है वो किस तरह के रिएक्शन शो करेंगे, कैसे रिएक्शंस करेंगे। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है दे आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होते हैं और इसमें 3 स्टेप जो हैं बेटे वो इन्वॉल्व होंगे। कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे? इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। 1 बाय 1 वो स्टेप मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, आप सेकंड पेपर की तरफ आ जाएं, सेकंड पेज की तरफ आओ। मैं पूरा ये भी हेडिंग्स की फॉर्म में आपको लिखवाती हूँ क्योंकि ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ हैलोजिनेशन मतलब डिड देयर रिएक्शंस या हाउ दे शो देयर रिएक्शन, या आपका आ सकता है कि इनका नेचर ऑफ रिएक्शन जो हैलोजेंस का है वो कैसा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दोगे नेचर ऑफ रिएक्शंस। किसके नेचर ऑफ रिएक्शंस की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हैलोजिनेशन की। ठीक है, अब इसको समझो, मैं क्या समझाना आपको चाह रही हूँ।
हम लोग क्या कर रहे हैं कि हैलोजिनेशन का नेचर ऑफ रिएक्शन किस तरह का है। आप यहाँ पे बताओगे कि हैलोजिनेशन जो अल्केन की होती है, दे आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर। और ये जो रिएक्शंस हैलोजिनेट देते हैं बेटे, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन, यानी कि स्टार्ट होना, इनिशिएट होना कोई चीज़। और जो सेकंड स्टेप है डेट इज़ नोन एज प्रोपगेशन। और थर्ड स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कहते हैं। 1 बाय 1 हम सारे स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारे पास आता है स्टेप 1। क्या हेडिंग देंगे आप स्टेप 1 की? स्टेप 1 को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी कि पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा बेटे? फॉर्मेशन होगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और कॉमन एग्जांपल इसकी हम जो है वो क्या लेंगे? मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास Cl-Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? सनलाइट। ठीक है, ये हमारे पास सनलाइट है। और आपके पास क्या बनेंगे? यहाँ पे हमारे पास बनेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, एक रेडिकल और ये हमारे पास 2 रेडिकल। पहले स्टेप में क्या हुआ बेटे? फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म हुआ किसका? क्या बनेगा? हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स बाय हैलोजेंस। इट यहाँ पे क्या चीज़ इन्वॉल्व है? इस प्रोसेस क्या हुआ? इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ हैलोजन। हैलोजन, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, इन दोनों की क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग होगी। और इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कहाँ से हमें मिल रही है? वो सनलाइट से मिल रही है, यूवी लाइट से मिल रही है। और ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। आगे चलेंगे हम स्टेप 2 की तरफ। स्टेप टू हमारा क्या है? डैट इज टर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कहते हैं स्टेप 2 को। स्टेप 2 इज नोन एज टर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटे, एक मिनट। स्टेप 2 को हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन। स्टेप 2 इज नोन एज प्रोपगेशन। स्टेप 2 इज नोन एज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? ये सेकंड स्टेप है। और इसमें फ्री रेडिकल जो हैं, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाते हैं, फ्री रेडिकल अटैक ऑन अल्केन मालिक्यूल्स। ये अटैक करेंगे किसके ऊपर? अल्केन मालिक्यूल्स के ऊपर। और हमारे पास फर्दर आगे और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनेंगे बेटे? मैं आपको पूरा रिएक्शन बताती हूँ, इजी रिएक्शन बताती हूँ। आपके पास क्या होगा? CH3 साथ H, यानी कि टोटल क्या है? ये हमारे पास CH4 है। क्या चीज़ है? ये CH4 है। साथ आपके पास क्या आ जाएगा? जो फ्री रेडिकल हमारे पास ऊपर था Cl आ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ Hv आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HCl। यानी कि देखो ये क्या था? ये था CH4। बेसिकली ये CH4 है ना, ये CH4 है। हमने इसको ब्रेक करके लिखा ना कि CH3 मैंने अलग कर दिया, मिथाइल हाइड्रोजन मैंने यहाँ से अलग कर दिया। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन हुए, आपके पास क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl बन गया। HCl बेटे यहाँ पे बन गया। और ये जो बन गया, दिस इज मिथाइल। ये क्या बन गया? दिस इज मिथाइल। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। मिथाइल ये क्या था? मिथेन था। मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया और वो हाइड्रोजन Cl के साथ जाके अटैच हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा? यही CH3 जो हमारे पास आया है, ये फिर फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आएंगे। Cl हमारे पास आएगा। और ये आपके पास दोबारा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl और साथ आपके पास फ्री रेडिकल फिर एक सेपरेट हो जाएगा। यानी कि ये जो Cl है ये इसके साथ आके अटैच हो गया। ठीक है,
ये Cl इसके साथ आके अटैच हो गया, तो आपके पास ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और फिर आपके पास इन द एंड क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया। अब अगला स्टेप जो होगा डेट इज नोन एज स्टेप 3। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 इज नोन एज टर्मिनेशन। क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेशन कहते हैं। स्टेप 3 की बात करें हम, स्टेप 3 क्या है हमारा, टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन में क्या होगा बेटे, टर्मिनेशन स्टेप जो है ये फाइनल स्टेप होता है। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें हमारे पास 2 फ्री रेडिकल आते हैं, वो रिएक्ट करेंगे, इकट्ठे रिएक्ट करेंगे टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। हमारे पास क्या बन जाता है बेटे, इन द एंड प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो टर्मिनेशन रिएक्शन होते हैं बेटे, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि टर्मिनेशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। टर्मिनेशन में मैंने क्या कहा, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जिसमें 2 रेडिकल्स हमारे पास आते हैं, वो इकट्ठे रिएक्ट करेंगे। जब वो इकट्ठे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। टर्मिनेशन रिएक्शन जो है उनके डिफरेंट वेज है, तो हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टर्मिनेशन। वन बाय वन आपको मैं बताऊंगी कि टर्मिनेशन के डिफरेंट वेज क्या है। पहला वे क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले क्या हमारे पास हो सकता है कि जो क्लोराइड है और जो अल्काइल रेडिकल है, ये अल्काइल रेडिकल बना ना आपके पास, ये क्या है, मिथाइल है, साथ क्लोराइड मिल गया तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हाइलाइड कहते हैं। इसमें क्या होगा कि क्लोराइड और अल्काइल हाइलाइड जो हैं ये कंबाइन होते हैं और आपके पास क्या चीज़ बनती है, क्लोरो अल्केन बन जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। मैंने क्या कहा, CH3 यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे ये C है, ये H है, ये भी H और ये भी H। बेटे मैंने राइट किया, ये CH3 था, इसके साथ ये फ्री रेडिकल और साथ यहाँ पे हम Cl दोबारा मिलाएंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा Cl। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना था, ये हमारे पास बन गया, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड और अल्काइल रेडिकल जो है ये कंबाइन किए और आपके पास क्या बन गया, क्लोरो अल्केन बन गया। अगले में नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा, नंबर 2 में 2 क्लोराइड रेडिकल जो हैं वो भी रिएक्ट करेंगे, क्या बनाने के लिए, क्लोरीन मालिक्यूल बनाने के लिए। किस तरह मालिक्यूल बनाएंगे बेटे, ये क्लोरीन का Cl एक रेडिकल प्लस Cl दूसरी रेडिकल, ये दोनों कंबाइन होंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, Cl-Cl। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और रिएक्शन भी आ सकता है, जैसे कि थर्ड रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। थर्ड भी हमारे पास, मैंने बताया था ना टाइप्स ऑफ हमारे पास टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के डिफरेंट वेज हैं। तो वन बाय वन मैं आपको वो सारे वेज बता रही हूँ कि किस तरह से टर्मिनेशन हो सकती है, किस तरह से हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ सकता है। एक और तरीका भी है, CH, यहाँ पे भी H अगर आए, ठीक है, फिर इसको आप लोग ये फ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगेन आप यही करो CH, यहाँ पे भी H, तो आपके पास ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे बेटे, C', यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप लोग ख़त्म कर दोगे, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी आपके पास H आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, इस सेक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है किसकी बेटे, देखो क्या चीज़ फॉर्म हुई है, अगर आप यहाँ पे गौर करो, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। आपके पास यहाँ पे अल्केन्स बने हैं विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन के नंबर कितने हो गए, डबल हो गए हैं ना, 2 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, और ये कब बना, जब 2 अल्काइल, यानी कि CH3 है ना, जब 2 अल्काइल, ये भी अल्काइल है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, जब 2 मिथाइल इकट्ठे मर्ज हो जाएं, मर्ज का मतलब होता है दोनों इकट्ठे हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं 2 अल्काइल, तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बेटे अल्कीन बन जाता है। और इस टाइप की टर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, कम होती है। ठीक है, और अल्कीन्स जो है विद डबल कार्बन एटम जो है इस फॉर्म में जो है हमारे पास बनेंगे, और ये मैंने उसका आपको स्टेप लिख दिया। इन द एंड बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे राइट करके दिखाऊंगी, दैट इज रिमेनिंग स्टेप ऑफ प्रोपगेशन, रिमेनिंग स्टेप ऑफ प्रोपगेशन
प्रोपेगेशन, हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकंड स्टेप को हमने क्या नाम दिया था, प्रोपेगेशन का नाम दिया था। ठीक है, प्रोपेगेशन आपकी बुक में बस इतनी ही दी हुई थी, लेकिन प्रोपेगेशन जो है ये एक रिपीटिंग स्टेप है। ठीक है, प्रोपेगेशन, इसमें आपके पास जो है मिक्सचर ऑफ हैलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी कि क्लोरो अल्केन्स जो हैं उसमें हमारे पास ऑब्टेन्ड होंगे, और क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्शन मिक्सचर स्टार्ट करेगी, और आपके पास ग्रेटर पोर्शन ऑफ क्लोरीन एटम जो हैं वो इसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, किस तरह से फॉर्म होंगे बेटे, छोटा सा एक रिएक्शन है, आपने पहले भी 9th-10th में भी किया है, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत ईजी रिएक्शन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। सिंपल, हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, देखो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, एक Cl ये था, एक इसके साथ अटैच हो गया, Cl2 बन गया, दोबारा Cl आ जाएगा यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता जाएगा हर दफ़ा, ये 3 था, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये फिर आपके पास कितने बन जाएंगे, ये 3 बन जाएंगे, ये 2 थे ना, 2 में एक और ऐड हो गया, 3 हो गए, अगेन यहाँ पे Cl फिर एक रेडिकल आ जाएगा, और फिर यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, CCl4। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, आपने 9th-10th में पूरी एक सीरीज इस रिएक्शन की पढ़ी थी। यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो बताए हुए हैं कि फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पे बेटे फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, किस तरह से होते हैं, देखो ये क्या चीज़ है, दोबारा मैं बता रही हूँ, आपके पास आएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड में जब फ्री रेडिकल H ऐड होता है तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2, इस CH2Cl2 में फिर फ्री रेडिकल ऐड हुआ तो एक हाइड्रोजन फिर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन रह जाएगा ना, क्या बन जाएगा, CHCl3, अब फिर Cl रेडिकल ऐड हुआ और हाइड्रोजन फिर हमने रिमूव कर देना, पीछे क्या रह जाएगा, CCl4 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एरो से जो है इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बना, इसी से फर्दर आपके पास ये रिएक्शन होगा, और इसी रिएक्शन से हमारे पास फर्दर ये रिएक्शंस होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका नाम क्या है, ये जो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया CH3Cl, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे इसको, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाई, यानी कि इसको हम कह लेंगे डाई क्लोरोमीथेन, इसको क्या कहेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाएगा CHCl3, ये कुछ नहीं है इसके साथ, इसको क्या कहते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, और ये जो एंड पे हमारे पास बन गया, दिस इज नोन एज टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक, समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे और याद रखना है कि जो ट्राईक्लोरोमीथेन है, ये जो CHCl3 जो है ट्राईक्लोरोमीथेन है बेटे, ट्राईक्लोरोमीथेन को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और जो टेट्राक्लोरोमीथेन होता है इसको क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कार्बन, देखो कार्बन है ना ये, और टेट्रा यानी कि 4 Cl है, तो इसका नाम, दूसरा नाम ये भी हो सकता है, क्या नाम हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमने क्या कर लिया, रिमेनिंग स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन यहाँ पे मैंने बताया, क्लोरोमीथेन था, क्लोरोमीथेन से हमारे पास क्या बना, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से क्या बना, ट्राईक्लोरोमीथेन, और ट्राईक्लोरोमीथेन से हमारे पास क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर मैंने आपको फर्दर क्या बता दिया कि बेटे यहाँ पे जो ये आपके पास ट्राईक्लोरोमीथेन बना है, यानी कि CHCl3 जो हमारे पास बना है, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। CCl4 को, इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये आपने बेटे अच्छी तरह से जो है इसको लर्न करना है। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया कि अल्केन जो है वो किस तरह के रिएक्शन जो हैं वो शो करते हैं। 2 रिएक्शन हमने इसमें पढ़े, एक हमने पढ़े फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर मैंने आपको हैलोजिनेशन बताया है। हैलोजिनेशन में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन देखा, उसमें मैंने आपको डिफरेंट जो रिएक्टिविटीज़ थी वो सारी 1 बाय 1 आपको बताई। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, गौर किया हो, हमने सारे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किए थे।
पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज़ हेलोजिनेशन, ठीक है। सारा हेलोजिनेशन को एक्सप्लेन करके वन बाय वन जितना भी हमने यहाँ पे राइट किए थे उन सब की मैंने आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी बेटे सारी एक्सप्लेन की वन बाय वन। ये आपने अच्छी तरह से करना है। मैंने आपको बताया था कि इस पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया हेलोजिनेशन, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व थे। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनिशिएशन, कैसे होता है। फिर सेकंड स्टेप था प्रोपोगेशन और थर्ड स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के डिफरेंट टाइप के स्टेप्स थे, डिफरेंट वेज थे, उनको हमने 3 मेन वेज में कन्वर्ट किया और तीनों वेज के रिएक्शन जो है मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किए। इन द एंड बेटे हमने यहाँ पे प्रोपोगेशन का ऊपर एक ही स्टेप मैंने आपको बताया था ना, ये देखो CH3Cl हमारे पास आ गया था, वही CH3Cl आगे फर्दर भी रिएक्शन देता है, तो वो रिएक्शन मैंने इन द एंड बताया। CH3Cl यहाँ तक हमारे पास आ गया था ना, CH3Cl यानी कि ये क्या था हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड बन गया था। यही मिथाइल क्लोराइड आगे भी आपको जो है स्टेप देता है, आगे भी प्रोपोगेशन के स्टेप होते हैं। क्लोरोमीथेन से आपके पास डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, ड्राई से ट्राइक्लोरोमीथेन एंड देन इन दैट टेट्राक्लोरोमीथेन आपके पास आएगा, ठीक है। वन बाय वन ये सारे हमने स्टेप्स कर लिए और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट हमारा क्विक चेक आ रहा है और उसके बाद हम अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अल्केन्स में से कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे। और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।